welcome back to our channel. You're watching Crazy Viva and I'm back here again with another vlog. As you all know, I'm Vani Agarwal and I have just qualified my NIFT exam. I got into NIFT Jodhpur and I took fashion design as my department. That's what my dream was, and I'm really very happy as I got 636 All India rank in common merit category. So thank you so much who all supported me throughout this journey. So this video is especially for those who are an design aspirants or planning to appear for 2025 NIFT entrance exam. This is gonna be really helpful for you all because I'm gonna talk about a lot of factors about NIFT. What is NIFT? What are its eligibility criteria? What are the courses they provide? How many centers do they have? And all the stuff related to NIFT you are going to know in this video. Video is really gonna be very interesting as it will help you a lot, and if you have any confusions, doubts, and even if your parents do have some confusion or doubts about NIFT, some parents think that there is no future in the designing field, so this video is really going to be helpful for you all. So don't forget to give it a like button, to subscribe to my channel for more latest updates. And I'm leaving for my campus and for my hostel very soon as my semester is gonna start from August 1st. So don't forget to subscribe my channel ताकि मैं तुम लोगों को वहाँ जाके भी अपनी जर्नी दिखा पाऊँ डेली बेसिस पे कि वहाँ पे कैसे वर्क होता है and what I actually do. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम गोना टॉक अबाउट व्हाट इज NIFT. सो NIFT एक गवर्नमेंट डिज़ाइन कॉलेज है एज यू ऑल नो, एंड इट स्टैंड्स एट रैंक नंबर 1 इन इंडिया. Okay, and it comes under the Ministry of Textiles, of course, क्योंकि गवर्नमेंट है. So it is one of the top college. It is at the top number because it provides you with a lot of exposure and with lots of advanced curriculum than any other colleges. And so if you graduated from NIFT or you have studied at NIFT, then there are a lot of chances that there are a lot of opportunities coming to your way because of its exposure. In all, NIFT के 18 campuses है all over India. मैं उनके नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देती हूँ. So the first one is Bangalore, then we have Bhopal, then we have Chennai, then we have Gandhinagar, then we have Hyderabad, then we have Kannauр, Kolkata, Mumbai, New Delhi, Patna, Raebareli, Shillong, Kangra, Jodhpur, Bhubaneswar, Srinagar. So a lot of people have this doubt in their mind कि श्रीनगर कौन सा वाला है, कश्मीर वाला या गढ़वाल वाला है. तो guys, let me clear, ये श्रीनगर कश्मीर वाला है. एंड द लास्ट सेंटर दैट वी हैव इज पंचकुला. तो मैंने इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया था, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने नहीं लगाया. अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ तो वी हैव न्यू दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Hyderabad and Kolkata at top 5, and the 6th one is Gandhinagar, 7th one is Jodhpur. I took Jodhpur because मेरे को जो ऊपर वाले 3-4 थे उसके अंदर ऑप्शंस नहीं मिले and my parents like denied to send me there. तो इट्स बेटर टू कन्विंस योर पेरेंट्स फर्स्ट गिविंग दिस एग्जाम. तो ज़रूरी नहीं है तुम जहाँ रह रहे हो तुमको वहीं का NIFT मिले. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रैंक. उसके बाद है हमारे पास कोर्सेज. NIFT क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है. सो द फर्स्ट वी हैव इज फैशन डिज़ाइन, देन वी हैव लेदर डिज़ाइन, देन वी हैव टेक्सटाइल डिज़ाइन, देन वी हैव फैशन कम्युनिकेशन, देन वी हैव knitwear डिज़ाइन, नेक्स्ट इज AD एंड BFTech, दैट इज बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी. एंड ये जितने भी कोर्सेज हैं ये आपको 4 इयर्स में ही कंप्लीट हो गए, विद इन 4 इयर्स. ठीक है, इनका ड्यूरेशन ही 4 इयर्स का है. इट्स अ क्रिएटिव इंडस्ट्री गाइस, ठीक है. तो मेक श्योर कि तुम यहाँ पर सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से ना जाओ कि तुमको ड्राइंग करना पसंद है या तुम आर्टिस्टिक वे में अपनी जो है करियर को परस्यू करना चाहते हो. NIFT इज ऑल अबाउट कैसे तुम चीज़ों को इनोवेटिव वे में क्रिएट कर सकते हो, राइट, कैसे उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो इन अ मोर नाइस वे. सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना. देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको ये कन्फ्यूजन था कि हमें तो फाइन आर्ट्स में जाना है, हमें तो पोर्ट्रेट्स बनाने का शौक है, तो लेट्स ट्राई फॉर NIFT. नो, दैट इज़ नॉट मेड फॉर यू देन. ठीक है, अगर तुमको यही करना है तो देयर आर सम अदर कॉलेजेस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम, बट NIFT इज समथिंग रियली वेरी डिफरेंट. यू नीड टू नो अबाउट इट. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्जाम डेट्स की, तो NIFT रिलीजेस इट्स एप्लीकेशन फॉर्म इन एवरी अक्टूबर का लास्ट वीक टू नवंबर फर्स्ट वीक.
ठीक है। इस ईयर आई गेस नवंबर में आया था हमारे पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है विच इज़ nift.ac.in। इस ईयर आई गेस नवंबर में आया था हमारे पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है विच इज़ nift.ac.in। तो अगर मैं बात करूँ इसके एग्ज़ाम की, तो इसका एग्ज़ाम मिड जान से फेब की फर्स्ट वीक में हो जाता है एवरी ईयर। दिस ईयर इट वाज आई गेस 5 फेब को था, ठीक है, पहला राउंड, जिसमें 2 राउंड्स कंडक्टेड होते हैं, वो मैं भी बताती हूँ आगे वीडियो में। वॉच वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट वी हैव द सिचुएशन टेस्ट, जो हमारा लास्ट राउंड होता है वो होता है अप्रैल में, एंड जो हमारा रिजल्ट है वो ऑल एंड ऑल मई तक आ जाता है फाइनल रिजल्ट। उसके बाद हमारी काउंसलिंग चलती है पूरा जून, एंड अगस्त से जो है हमारा सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है विद योर एडमिशन, विद योर फीस पेमेंट, विद योर हॉस्टल एंड एवरीथिंग, ठीक है, वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो इनके पास जो सबसे पहला राउंड होता है वो होता है हमारा CAT, ठीक है, जैसे हम कैट बोलते हैं, एंड क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर तुम्हारा सारा स्केचिंग वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, लेट मी टेल यू गाइस कि इट्स बेटर कि तुम अपनी क्रिएटिव एबिलिटी पे ज़्यादा वर्क करो, बिकॉज इट्स द मोस्ट स्कोरिंग राउंड इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लाइक पर्सनली आई गॉट 90 मार्क्स इन कैट, तब जाके मेरे उसका 50% वेटेज लगा था, दैट इज 45 मार्क्स, ठीक है। तो हर राउंड का कुछ ना कुछ वेटेज है टोटल वेटेज में से, ठीक है। तो कैट का CAT का क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का हमारे पास है 50% वेटेज ऑफ द टोटल मार्क्स यू ऑब्टेन, यानी 100 मार्क्स का होता है। यू विल गेट 3 क्वेश्चंस इन दिस, ओके। तो इसके अंदर तुम्हें क्या क्या सीखना पड़ेगा, यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ स्केचिंग, ड्राइंग। कंसिस्टेंसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखना, डेली बेसिस पे रूल बना ही लो कि हमें एक स्केच 2 स्केचेस करने ही करने हैं। हम एक स्केच को कलर वाला कर रहे हैं रेंडर करके, दूसरा वाला हम पेंसिल स्केच बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर तुम्हें सेट करनी पड़ेगी विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी ड्राइंग के लिए 1 घंटा ले रहे हो, दूसरे को तुम 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो। इट वोंट वर्क, इट वोंट वर्क, लाइक ट्रस्ट मी गाइज, नहीं करेगा वो काम। ड्राइंग में तुम्हें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ह्यूमन फिगर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे आसपास है, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो अभी से अगर एग्जाम लेना चाह रहे हो तो। नेक्स्ट वी हैव तुम्हारे आसपास के जितने भी सीन्स होते हैं, वेदर इट इज़ अ मार्केट सीन, रेलवे स्टेशन सीन, और स्कूल की बेंच पर बैठे हो वहाँ का सीन, पर्सपेक्टिव इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुमको इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड भी चीज़ें कराई जाएंगी फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी हैं CAT के। इफ यू वांट देम डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कॉज आई डू हैव द आंसर शीट ऑल्सो एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सो मुझे फटाफट से बता दो अगर तुम लोगों को चाहिए तो, एंड इफ यू आर रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। सो नेक्स्ट राउंड इज GAT, जिसे हम बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इसके अंदर वी हैव 4 सब्जेक्ट्स जो हमें करने होते हैं, विच इज GK, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड योर इंग्लिश वाला पार्ट, ओके। सो अगर मैं बात करूँ मैथ्स वाला पार्ट, तो मैथ्स वाले पार्ट में वी हैव ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू basic arithmetic and data interpretation and profit or loss, compound interest, everything you have studied in your 8th to 12th class। जितने भी मैथ्स के बच्चे हैं या जो भी मैथ्स में सीखा है, बहुत बेसिक सी मैथ्स होती है। अगर तुम पूरा नहीं भी करना चाहते ना, तो इट्स बेटर गो थ्रू ऑल द मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। गो थ्रू ऑल दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं अभी तक। आज जब से एंट्रेंस एग्जाम होना शुरू हुआ है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव आर लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। तो इसके अंदर तुम लोगों को पता होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, स्पेशली फैशन ट्रेंड्स के साथ स्टे अपडेटेड। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी तुम्हारे स्टेट में हो रहे हैं, कंट्री में हो रहे हैं, यू नीड टू नो अबाउट दिस, ठीक है। एंड ऑल्सो जनरल अवेयरनेस, यू नीड टू नो अबाउट ऑल द सिम्बल्स एंड ऑल द लोगोज, ऑल द ब्रांड एम्बेसडर्स, नेम ऑफ दैट ईयर, है ना। और जो भी फाउंडर्स हैं फेमस कंपनीज के, फेमस ब्रांड्स के, लाइक रिलायंस, तनिष्क, कोई भी चीज़ जो फैशन से बिलोंग करती है उसके हर किसी के को फाउंडर का नेम, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव हर थर्ड राउंड,
ठीक है। जो हमारा जीएटी वाला पार्ट होता है उसका होता है 30% वेटेज ऑफ टोटल मार्क्स। तो अगर तुम्हारे 100 में से मान लो 60 मार्क्स आ रहे हैं तो 60 का 30% हो जाएगा। ये चीज़ तुम अपने दिमाग के अंदर बांध लो, इतना अच्छा है। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल अच्छे मार्क्स स्कोर करो जीएटी में, ताकि 30 वेटेज है अगर 100 की वजह से 30 मार्क्स, तो तुम्हारे 30 के नियर आए टू गेट अ गुड रैंक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, लाइक मेरे 24 मार्क्स आए थे, देन उसका 30% जाके 8 लगा। आई वॉज नॉट गुड विद माई जीके वाला पार्ट। ठीक है, एंड मेरी मैथ्स तो पता नहीं अलग ही है। आई एम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, ऑब्वियसली मेरे पास मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव SAT विच इज सिचुएशन टेस्ट। तो सिचुएशन टेस्ट में क्या होता है, दैट्स हैंड्स ऑन राउंड। वो तभी होता है जब तुम पहले 2 राउंड्स क्लियर करते हो, विच इज योर कैट एंड गैट वाला पार्ट। ये एक ही दिन कंडक्ट होगा। एंड सिचुएशन टेस्ट कुछ 1 महीने बाद या 15 दिन बाद होता है, उसका रिजल्ट आने के बाद। इस साल 1 महीने बाद कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो तुमको ऑलमोस्ट 20-25 दिन का गैप मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए रिजल्ट के साथ एंड एवरीथिंग, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। सिचुएशन टेस्ट वाले जो होता है ना, इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए गाइस, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैंने तो 4 दिन में करके 20 मार्क्स में से आगे 16 मार्क्स लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन मेरे को उस 4 दिन से पहले पेपर तक पेस्ट करना नहीं आता था। एंड इट्स बेटर कि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, पिनिंटरेस्ट पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करो। यूल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, हाउ टू फोल्ड अ पेपर, किरिगामी टेक्निक्स, ऑरिगामी टेक्निक्स, हाउ टू मेक एन अलमेरा, हाउ टू मेक अ बेड विद यूजिंग एन आइवरी शीट। तो तुमको बहुत सारी ऐसी वीडियोज और DIYs मिल जाएंगे। सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन लाइक अकेडमीज। ठीक है, they'll ask you to pay a lot of money फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद। ठीक है, इसलिए ज्यादा दिमाग अपना मत चलाना। पिनिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, यू हैव योर मोबाइल फोन, यू हैव योर टैबलेट्स, यू हैव योर लाइक कंप्यूटर्स, यूज देम। ठीक है, उनको यूज करो, अलग अलग टेक्निक सीखो, तुमको हर ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। So that was the last part. So there are some tips and tricks that I want to give you guys, जो मैंने personally अपनी बारे में follow करी थी to like exam, and I really want to tell you that guys to help you. So सबसे पहली जो टेक्निक मैं बताना चाहती हूँ, that is understand the syllabus guys. पूरे सिलेबस को गो थ्रू करो। कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें उठाकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। कुछ होते हैं जिनको एक एडुकेट लेवल जो चाहिए पढ़ने के लिए वो भी नहीं करते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड द सिलेबस। व्हाट एम आई सेइंग इज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एवरीथिंग जो भी इसके टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। विल गेट अ लॉट ऑफ बुक्स ऑनलाइन। ठीक है, अगर तुम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, go for that, but I personally suggest don't, because I have wasted my money just to learn that rendering वाला part. ठीक है, and बहुत सारे teachers हैं YouTube पे that will definitely help you out. If you want to join online class, सब समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि तुमको सब ऑफलाइन जाके ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो सारा सिलेबस अच्छे से समझो, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर श्योर कि तुम क्या कर रहे हो। सब चीज़ों के सेक्शंस को समझो, उनकी वेटेज देखो कि एग्जाम में किसकी कितनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर। नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट टिप जो आई वांट टू गिव यू इज प्रैक्टिस रेगुलरली। आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट गाइज। स्केच करो, अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि परफेक्ट बन जाओ, ऑफकोर्स तुम लोगों को फाइन आर्ट्स वाला स्टूडेंट नहीं बनना है। तुमको कलर और शेडिंग स्ट्रोक्स मार के सीखनी है। ठीक है, तो ट्राई करो कि तुम स्ट्रोक्स मार के मोर डिजाइनिंग वे में उस चीज़ को करो। ह्यूमन फिगर्स प्रैक्टिस करो, पर्सपेक्टिव करो, ऑब्जेक्ट्स करो, डू वर्क ऑन योर स्टिल लाइफ। इफ इट इज नॉट गुड देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, डिफरेंट सीन्स बनाओ, वो पहाड़ और बीच में से सन वाला नहीं जो बचपन में बनाते थे। नाउ अब तुम्हारा लेवल अप हो रहा है तो अच्छे से सीन्स करो जिसके अंदर ह्यूमन फिगर्स भी इंक्लूड हो, ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो। ठीक है, हर चीज़ को 3D बनाने का ट्राई करो रेंडरिंग करने के थ्रू। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए गो थ्रू ऑल द नॉवेल्स दैट यू हैव। नई नॉवेल्स पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करो, जितने भी वर्ड्स तुम्हें नहीं आते हैं उनको मार्क करो, उनको लिखो एक जगह, उनके मीनिंग्स ढूंढो। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं बता रही हूँ, कॉम्प्रिहेंशन को ईजी वाला मत समझना, 12th वाले लेवल से भी बहुत अलग आएगा। इतना कंफ्यूज कर देंगे ना तुमको MCQs के अंदर कि तुमको लगेगा ये
भी आंसर है, वो भी आंसर है, बट जो तुम्हें लगेगा कि वो आंसर है, वो आंसर कभी होगा ही नहीं. तो आप प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. आई डेफिनेटली पोस्ट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल एंड आई हेल्प यू इवन सॉल्विंग देम आउट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज का है. मैं बोल रही हूँ अभी से, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर, स्टे अपडेटेड विद द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, विद द फैशन एंड द ट्रेंड्स वाला न्यूज एंड एवरीथिंग. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टाइम मैनेजमेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू क्लियर एनी एग्जाम, नॉट ओनली NIFT. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा ना हो तुम एक क्वेश्चन को करने में 4 घंटे लगा रहे हो, दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आधे घंटे में खत्म हो जाए. ऐसा नहीं होगा. एग्जाम के अंदर बहुत कम टाइम मिलता है. यू विल ओनली गेट 3 hours टू कंप्लीट 3 क्वेश्चंस विद स्केचिंग एंड विद रेंडरिंग. तुम्हारे हाथ दुखने लग जाएंगे, दर्द करने लग जाएंगे, बट वो कंप्लीट नहीं होगा. मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स क्राइंग इन एग्जामिनेशन हॉल जस्ट बिकॉज दे वोंट बी एबल टू कंप्लीट देयर एग्जाम. ड्राइंग सबकी अच्छी होती है, लेकिन क्रिएटिवली सब नहीं सोचते. सबों ने उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया, जबकि आता सबको था. किसी का हाथ पेन होने लग गया, किसी को टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस नहीं था. ठीक है, क्रिएटिव सब थे, बट किसी ने अपना ब्रेन नहीं यूज़ किया कि हमें कैसे चीज़ों को एडजस्ट करके अपना एग्जाम कंप्लीट करना है. तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, भगवान ने दिया है. एंड टाइम मैनेज करो, कंसिस्टेंसी रखो, एंड यू गेट अ गुड स्कोर एंड अ ग्रेट रैंक डेफिनेटली. So if you need any other help, I want to talk about a lot about NIFT. In next video, I'm going to talk about its placements and jobs and how is my experience throughout this journey and everything. जो भी मैं डिस्कस तुम लोगों के साथ कर सकती हूँ. व्हाट्स द फीस, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, काउंसलिंग में क्या होता है, इन तीनों राउंड्स को क्लियर करने के बाद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो तब तक के लिए डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू कॉमेंट्स मी डाउन कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी. डू टेल मी योर क्वेश्चंस और योर क्वारीज इन कमेंट्स सो दैट आई कैन मेक फर्दर वीडियोज ऑन. ऑल्सो मैं जा रही हूँ एक हफ्ते बाद. माई पैकिंग इज ऑल डन. आई एम रियली एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम फॉर श्योर, बिकॉज आई हैव नेवर स्टेड away from my parents and from my house, and it's going to be a new and a different experience for me. So I need all your support throughout this journey, and thank you so much for watching the video. Hope you like it. Bye.